Didi, in the last class you explained a very beautiful chopai, which was, you said that it's very important to lay the foundation of this study also, and it resonated with me. And I kind of every day, I think in the last 2 days, with the way events have panned out in my life, कि मतलब असुर अज्ञानी और अभिमानी, asur adham or abhimani is like three words that just kept playing in my mind, like, this chopai, kind of the whole idea was to, it's a very simple chopai, but the meaning of it changes with the understanding that the people who need to change is us only, like we प्रोफाइल are क्या the, है बेटा? जब जब हुई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी, तब तब धर तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हर ही दया निधि सज्जन पीड़ा. So the difference is that who is Sajjan, the meaning of Asur, Adham, Abhimani. I think that kind of stayed with me. And because in the last 2 weeks, there were some events that happened wherein I could see my vasanas playing out, and I was like, कि हम ही हैं जो मतलब इतना असुर, इतना Yes, yes. इतना मतलब the whole idea that you said that, the way we should conduct ourselves, something very simple, how we conduct ourselves as a student of philosophy and spiritual seeker, at least we should be more aware of that. um, so that kind of I remembered. And also the aspect of abhimani, that it starts with abhiman again. And I think in the other class where we were studying a sutra, understanding the composition of human being, where you explained that ego comes much before anything else manifests in the body. And that's why it is so important that a difference between a doctor or a healer or a guru is guru works on ego. So ego is slash kar di, and that's why you say different things to different people, and sometimes we don't understand that why even the solutions are different. But I think it's coming from the space that ki meri ego mein jo cheez, like, the things that I need to kind of let go is something. So that whole idea of working on the ego, and then everything else will kind of, matlab jaise we were understanding about the importance of gunas and whole this balance and ratio, I think that all eventually धीरे धीरे will kind of सब, I mean, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो ठीक हो जाएगा. But I think that abhiman part is something that we need to work on, and the importance of, once again, guru, that if you have somebody whom you can look up to, who makes you understand that how inadequate you are, how off track, off tune you are from your true self and that Paramatma, because we all have come out from that Paramatma only, but we have forgotten that our the sat part of it. The So that's why we all were sajjan, I think, at some point of time. But because of our vasanas and this existence in matter, kind of we have become asur, and we have lost that the real dharma. And the abhiman part, of course, is most important. So it is very important that whenever it happens, then Bhagwanji in different form, be it, can manifest depending upon what is the requirement of that era, or of that time. So you gave example of Narsimha Bhagwan, where, the whole root was fierce and to create fear. And then Sri Ramji to understand the whole acharan and vihar. And then like the god of Venus, I would say, Sri Krishna ji, to just kind of, you know make us understand in our own way, that so that was something that kind of stayed. But yes, I could see in lot of events that it's so difficult to, that recognition is very important, that you are all you are you are at fault all the time. And something very basic, sometimes we just, that whole idea about conduct also kind of stayed with me, that how we should conduct ourselves. मैंने एक शब्द यूज किया था, आत्मबोध। और एक्चुअली वो आत्मबोध तो मैं उसको बोल रही हूँ, एक्चुअली द वर्ड इज आत्मग्लानि। बट अगर आपको बोध हो जाए तो ग्लानि अपने आप ही समझ में आ जाती है, इसलिए
to keep it a little bit positive, I call it Atma Bodh. That's my own coining of the term. But Atma Glani. Constantly, as we hear कथा या सत्संग कब करते रहते हैं हम लोग, जब चर्चा करते हैं, जब कोई भी चर्चा करते हैं किसी भी चीज के, अल्टीमेटली यही है। भगवान बोले कि एक सुंदर कांड का की चौपाई है, मेरी माँ को याद होगी। मम्मी बताना। निर्मल जन सो मोहि पावा। क्या है ये मम्मा? हाँ क्या है? हाँ बेटा, क्या है? निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि न कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। न भावा, निर्मल आगे जन ना, जिसको याद है सुंदरकांड उसको भी याद होगा, पर ये हम इम्प्लीमेंट करना भूल जाते हैं। निर्मल जन सो मोहि पावा। सुंदरकांड में बहुत दूर है, अभी सुंदरकांड हमने तो शुरू भी नहीं किया, पर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, भगवान बोलते हैं। क्या बेटा, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, तू कुछ बोल रहा है? पढ़ रहा था, सॉरी दीदी, वो इंटरनेट पे जो आप चौपाई बोल रहे थे, जो सॉरी वो बोल रहे थे, जस्ट आई सर्च इट ऑन द इंटरनेट। क्या है बताएं, सबके साथ शेयर करें। निर्मल मन जन मोहि सुमोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भेद लेन पठवा दस सीसा, तबहु न कुछ भय हानि कपीसा। आगे जाने जरूरत नहीं है, इतना ही। अच्छा। भगवान बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? हनुमान जी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि निर्मल जन सो मोहि पाव। जिसका मन निर्मल है, जिसका मन निर्मल हो गया, वो मुझे पाता नहीं है, वो मुझे पाया हुआ है, उसके पास मैं हूं। जिसका मन निर्मल हो गया, उसके पास तो मैं हूं। और कपट छल छिद्र ना भावा। जब रावण ने मरीच को बोला कि तुम, मरीच याद है, कहानी याद है ना? रावण ने मरीच को बोला कि तुम सोने का हिरन बन जाओ, सोने के मृग बन जाओ। तो कपट और छल दोनों करो, सोने का हिरन बन जाओ, और राम जी को सीता मैया से दूर कर दीजिए। तो छल और कपट की डेफिनेशन भी, निर्मल की डेफिनेशन तो खैर बहुत ही बड़ी है, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। अगर छल और कपट ही समझ लें पिछली क्लास से इस क्लास तक, तो ही बड़ी बात हो जाएगी। भाई किसी भी चीज में दो तरीके का आंसर हो सकता है। एक वो जो ईगो से आए, और एक वो जो निर्मल मन से आए। निर्मल मन की बात कर रहे हैं हम, तो जो संत का आंसर है, जिसका निर्मल निर्मल है, और जो भोगी का आंसर है, या योगी का आंसर है और भोगी का आंसर, तो बहुत डिफरेंस है उसमें। कैसे डिफरेंस है? छोटी छोटी चीज ना, आप खाने गए, अच्छे रेस्टोरेंट में खाया, हाँ ये खाया ये खाया, फिर ये भोगी, ये खाया ये खाया ये खाया ये खाया। और जो निर्मल मन से सोच रहा है, जो भगवान के बारे में या अपने बारे में ही खाली, भगवान भी छोड़, तो भगवान भी बड़ी बात है, अगर अपने बारे में ही सोच रहा है तो वो ग्लानि से भर जाएगा। अगेन आत्मबोध या आत्मग्लानि एक ही चीज है। ग्लानि से भर जाएगा। कितना एडिक्शन है मुझे खाने का, कि एक बार खाया उसको 50 बार सोच रहा हूँ।
एक बार भी कितना खा लिया? भगवान बोलते हैं कि आधा पेट खाना चाहिए, मैंने तो 1.5 पेट खा लिया। लगातार मुंह चलता रहता है, बंद नहीं होता, दिमाग कैसे चलेगा? इस शरीर में लिमिटेड एनर्जी है, ऊर्जा बहुत ही लिमिटेड है। या तो पेट चलाएगी या बुद्धि चलाएगी। तुम पेट ही चलाते रहते हो, बुद्धि कैसे चलेगी? जो निर्मल मन का इंसान है, जो निर्मल मन का व्यक्ति है, उसकी सोच कुछ इस तरह से रहेगी, सिर्फ खाने के ऊपर, नॉट इवन गोइंग वेरी फार। ये भी नहीं बोल रही कि भगवान, सोचो कि भगवान को भोग लगाया कि नहीं लगाया। ये भी नहीं सोच रही भगवान को तो छोड़ ही दो, खाली अगर अपने बारे में सोचे आदमी तो ग्लानि से भर जाए, भगवान को सोचे तो पता नहीं क्या हो। तो सी, निर्मल मन की डेफिनेशन। और ये छल और कपट, हम सोच रहे हैं अपने आप को हम अच्छी चीज दे रहे हैं, इससे बड़ा छल क्या हो सकता है अपने साथ? हम अपने साथ ही इतना छल करते हैं। आज मेरे को पीयूष ने बताया, सुबह फोन आया था कि दीदी मैं मंदिर गया, वहां रुद्री हो रही थी, और मेरी वाइफ को पता चल गया रुद्री हो रही है, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने रुद्री भी कर ली। अरे मूड बुद्धि, रुद्री मेरे से नहीं होती, तुझसे कैसे होगी? मन ईगो से भरा हुआ है, उसको लग रहा है उसने रुद्री कर ली। आज तक नहीं हुई मुझसे रुद्री। कि काश भगवान मुझे भी सरस्वती का थोड़ा दान देते। ये छल है, अपने साथ ही छल है। आपने अपने आप को बोल दिया कि मैंने रुद्री कर ली। की क्या? हो सकती है क्या? हुई क्या? और वैसे भी नहीं होगी, तुम तो मेरी रिकॉर्डिंग लेके बैठे हो, ठेंगा होगा, मेरे को तो खुद ही नहीं आती। दीदी कहीं तक तो पहुंचेंगे आपकी रिकॉर्डिंग से। तो बेटा बात वो नहीं है, मैं सिर्फ हाँ आई जी, डोंट मीन टू पॉइंट एट यू, आई no no no, एब्सोल्यूट, I मुझे absolutely, नहीं no no, बोला। I understand दीदी। I am just saying how we are fooling ourselves. Day in and day out we are fooling ourselves. 4 आसन करके लगता है हमने योगा कर लिया। खुद भी पता है योगा इतना नहीं होता, ज्यादा होता है। 1.5 घंटे का योगा होता है, 4 आसन करते हैं। तान्या ने योगा किया है, हाँ दीदी आजकल हो रहा है। हो रहा है क्या? ये छल और कपट है। नेहा का फोन आता है या मैसेज आता है, दीदी मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मेरे को अप्रिशिएट नहीं करे। अप्रिशिएट करने वाली कोई चीज हो तो अप्रिशिएट करे दूसरा आदमी। नॉट अबाउट, आई एम नॉट व्यावहारिक या संसार में इसकी बात नहीं है। अपने साथ हम छल तो ना करें ना। बात ये नहीं है कि वो अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बात ये कि तुम्हारे अंदर गुण है क्या, आ गया क्या? अपने आप को बेवकूफ तो मत बनाओ कि आ गया। अपने आप को तो बेवकूफ मत बनाओ कि मैं कर रहा हूं। ये छल और कपट है। डज दैट मेक सेंस? तो निर्मल मन और छल और कपट मतलब कितना डिफरेंस है। हम तो छल और कपट करते 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 करते, अभी ये मोनिका आई, सुबह से मुझे बोल रही है ये कोर्स है, ये कोर्स है, ये कोर्स है। मैं चार चार बार बोल चुकी है अभी तक, बेटा कोर्स सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए, तुम हार्ड वर्क कर लो, अपने आप ही समझ में। हार्ड वर्क तो मैं कर लूंगी, हार्ड वर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे गधे, हार्ड वर्क की प्रॉब्लम नहीं होती तो अभी तक कर ही ना लिया होता। मेरे को एक ढेंगा भी सर्टिफिकेट नहीं है। योगा को योगा सिखा देती हूँ, आयुर्वेदा को आयुर्वेदा सिखा देती हूँ, ईगो की बात नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है।
और होगा भी तो उसका तो कोई किसी को पता है मेरे पास कितने सर्टिफिकेट है? मेरी दराज में रखे हुए हैं, वो भी सिर्फ पता नहीं किस लिए रखे हुए हैं। जला दो तो भी कोई फायदा नहीं, रखो तो भी कोई फायदा नहीं, जगह घेर है। तो हार्ड वर्क कर लूंगी नहीं, ये फ्यूचर टेंस है, ये अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली बात है। छल है ये, दिस इज कॉल्ड छल और कपट। किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ कर रहे हैं। जिसने पढ़ना होता है वो पढ़ लेता है, उसको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत। जिसने पढ़ना नहीं होता वो सब सर्टिफिकेट लेके भी मूर्ख, अनपढ़ गंवार। और आज की डेट में पढ़ाई के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर खोलो जो चाहिए मिलेगा। और चैट जीपीटी खोल लो, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। जितना तुम्हारा वो कोर्स दिखाई थी ना मेरे को, एक एक को चैट जीपीटी में डालो, तुम्हारा सारा आंसर निकल के आ जाएगा, पढ़ लो उसको, हो गया खत्म पूरा कोर्स। किसी प्रोफेसर की भी जरूरत नहीं है। बात अलग है। निर्मल मन और कपट और छल जानने के लिए गुरु की जरूरत जरूर हो सकती है, मगर न्यूट्रिशन में क्या खाना खाना चाहिए सीओपीडी के लिए, या खैर उसके लिए आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप खुद पढ़ सकते हैं। सो जिसके पास निर्मल मन है वो मुझे पाया हुआ है। भगवान बोल रहे हैं, जिसके पास निर्मल मन सो मोहि पावा, उसके पास मैं हूं। और किसके पास नहीं हो? हम सबके पास नहीं भगवान। क्यों नहीं है? छल, कपट, छिद्र हम लोग अपने साथ ही करते रहते हैं सारे टाइम, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। मैंने किसी people's favorite sentence and my most hated sentence is that I don't hurt anybody. I have never hurt anybody. मैं सबका अच्छा ही करता हूँ, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ सारे। खुद का अच्छा किया नहीं आज तक, दूसरे का क्या सोचोगे? पेट निकल के 4 इंच आगे है। कोई आ जाए घर में तो ना उठने का संस्कार, ना बैठने का संस्कार, ना कुछ भी आता नहीं किसी को। रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, कुछ संस्कार तो आ ही जाएगा। मगर एक सिंपल सी चीज है, कोई भी मेरे घर आता है, बाहर माँ बाप रहते हैं, अंदर मैं रहती हूँ एकदम अंदर। 90% of the people come directly to my room. उनको नमस्कार करके कितने लोग आते हैं? मेरे से कुछ मिलेगा अगर वहां पर नमस्कार नहीं किया तो? ये नहीं बोल रही नमस्कार करो, लाइफ जीने का एक तरीका है। भगवान की इस पूरी रचना में यही सिखाया है, कैसे बैठो, कैसे उठो, गुरु की बात कैसे सुनो, कैसे लो, कैसे खड़े हो। इसका तो हम 0% करते फिर बोलते हैं मैंने तो किसी का बुरा सोचा नहीं, मैं तो बस अच्छा ही अच्छा करता हूँ, मैं तो सब अच्छा, मैं आई एम तो गुड विद एवरीबॉडी। हाउ आर यू गुड? हमारे घर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको मैं भैया बोलती हूँ। हमारे पंडित जी हैं, उनको मैं भैया बोलती हूँ। बाकी लोग क्या बोलते हैं? राहुल, विक्की, उनके दोस्त हैं, मैं भैया बोलती हूँ। तो अच्छे की परिभाषा तो कहाँ से शुरू होती है? हमारी तो है ही नहीं, जीरो माइनस। आत्मबोध, आत्मग्लानि बहुत जरूरी है।
हमें उठने बैठने चलने फिरने किसी के साथ बात करने का तरीका तक नहीं आता और हम सोचते हम अच्छे हैं। I'm cultured. I conduct myself very well. I do things right. So ये निर्मल मन सो मोहि पावा। काकभूषुंडी जी को श्राप मिला। काकभूषुंडी कौन है? आपको सबको पता होगा अभी तक काकभूषुंडी कौन है? पीयूष, कौन है काकभूषुंडी जी? He is one of the seven immortals. He's half crow, half human, and इनको गरुड़ जी को इन्होंने नरेट किया था रामचरितमानस। क्या घाट है? पनघट, जिसमें भक्ति का भाव है। तो काकभूषुंडी जी को एक बार काकभूषुंडी का शरीर कैसे मिला बताया मैंने? कौवे का शरीर क्यों मिला? एक बार एक जन्म में इनको पहले से ही भगवान भोलेनाथ की कृपा थी। भगवान शंकर के भक्त थे, है ना? आपको कहानी बताई थी ना मैंने। क्या कहानी थी? याद नहीं। भगवान शंकर के भक्त थे। द्वार ये अयोध्या छोड़ के द्वारका पहुंचे। भगवान शंकर की भक्ति की। भगवान शंकर की भक्ति की। गुरु आए। गुरु आए तो गुरु क्या थे? वो उनके वैष्णव गुरु थे। वैष्णव गुरु ने बोला कि चलो, शिव जी के भक्त हैं, उज्जैन नगरी है, शिव जी तो इनको शिव जी का मंत्र दे दिया। मंत्र दे के साधना कर रहे थे, गुरु आए मंदिर में। इन्होंने ध्यान नहीं दिया, आंखें बंद करके साधना करते रहे। ये आचरण की बात है। छल कपट छिद्र ये जो समझा रही थी, ये आचरण की बात। साधना करते रह गए। ऐसा नहीं देखा नहीं देखा, आंख बंद करके फिर भी साधना कर ली। देखो, गुरु लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात। भगवान शंकर को गुस्सा आ गया, क्या साधना में सफल होएगा आदमी जो गुरु का नमस्कार, उठ के नमस्कार नहीं किए। तो जैसे तुम अजगर की तरह से बने रहे, वैसे तुम अजगर हो जाओ। सांप बन जाओ। तो गुरु ने उनके लिए प्रार्थना की और बोला कि इनको छोड़ दीजिए। और भगवान शंकर ने फिर क्या उनको वरदान दिया? उनको वरदान ये दिया कि हर योनि आप जल्दी से अपने मन से छोड़ सकते हैं। याद रखिए, हर योनि आप जल्दी से अपने मन से स्व इच्छा के अनुसार छोड़ सकते हैं। योनि। तो योनि छोड़ सकते हैं। तो ऐसे उन्होंने अजगर रूप, कई बार सांप बने, कई बार सांप, हजार का उनको श्राप था, कई बार सांप बने। सर्प योनि उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दी। मनुष्य योनि मिली। मनुष्य योनि में उन्होंने भजन किया, कीर्तन किया। और एक बार एक ऋषि के पास दीक्षा लेने गए। दीक्षा ली और चर्चा की कि मुझे भगवान का सगुण स्वरूप चरित्र की का प्रवचन दीजिए। भगवान के, अब योगी अपने हिसाब से होते हैं, हर कोई अलग अलग होता है। तो जो वो ऋषि थे, वो वेदांता के ऋषि थे।
तो वो बार बार शुरू करते थे सगुण स्वरूप से और निर्गुण पे आ जाते थे। बार बार सगुण और बार बार वो निर्गुण। तो 2 बार 3 बार उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया, भगवान मुझे, गुरुजी मुझे आप सगुण स्वरूप की चर्चा कीजिए, मुझे सगुण सगुण स्वरूप सुनना है। कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, आप वो चर्चा कीजिए, मुझे निर्गुण स्वरूप नहीं सुनना। तो गुस्से में आके उन्होंने बोला, जा तू कौवा बन जा। यहाँ बोलने की तमीज नहीं है, सुनने की तमीज। कौवा, कौवा बन गए। उनके पास क्या था? भगवान से वरदान था, कोई भी योनि वो कभी भी छोड़ सकते थे। उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी, बहुत माफी मांगी और चले। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि भाई आप तो, आपके पास वरदान है, आप कोई भी योनि छोड़ सकते हैं, आप ये कौवा रूप क्यों, मतलब कौवा तो पक्षियों में चांडाल माना जाता है, मतलब ये लोएस्ट चांडाल, यानी कि लोएस्ट रंग। जैसे हमारे 4 कास्ट है ना, वैसे सारे ही, अगर इफ वी पुट कास्ट, जैसे राजा, जंगल का राजा शेर, तो ऐसे ही हर ब्रीड, हर स्पीशी में कोई ना कोई एक उत्तम मानी जाती है, और कोई राजसिक है, कोई सात्विक है, ऐसा हर स्पीशी का या हर काइंड ऑफ स्पीशी का कैटेगराइजेशन। और कौवा बर्ड्स में आता है, और बर्ड्स में कौवा चांडाल मानी, यानी कि लोएस्ट रंग, कुछ भी खा लेता है, सबसे कर्कश वाणी है, या काला शरीर है, सबसे खराब माना जाता है। तो उनसे पूछा गया कि भाई आपने ये कौवे का शरीर क्यों धारण कर रखा है, और इसको आपने अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? उन्होंने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मेरे गुरुजी ने इतना अच्छा वरदान दे दिया है ना। नेहा अभी तो हंस रही है, इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो बहुत रोएगी, है ना। गुरुजी ने इतना अच्छा वरदान दे दिया। अगर मैं आदमी के स्वरूप में अयोध्या जाता तो मुझे द्वार पे रोक दिया जाता, मैं भगवान से कभी नहीं मिल सकता था। अब तो मैं आराम से उड़ के भगवान से मिल लूंगा, उनकी लीला देख लूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं। इसलिए मेरे ऊपर तो भगवान ने बहुत कृपा कर दी, मेरे गुरुजी ने बहुत कृपा कर दी, और इस योनि में मैं भगवान को बहुत आसानी से देख सकता हूँ, इसलिए मैं क्यों छोड़ूंगा। और इसी योनि ने मुझे इतनी सारी राम भक्ति की प्रेरणा दी, तो मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। तो इसलिए वो कौवे बने रहे। मगर कौवे बनने के बावजूद उन्होंने राम भक्ति नहीं छोड़ी, और उनकी वाणी इतनी सुंदर, इतनी ब्यूटीफुल की राम कथा कर रहे हैं, सुंदर मधुर वाणी। और कौवा होने के नाते, बिकॉज काक है, बिकॉज ही इज अ क्रो, ही अंडरस्टैंड, गरुड़, गरुड़ जी पक्षियों के राजा। गरुड़ जी क्यों आए उनके पास, क्या कहानी बताई थी? काकभूषुंडी जी की कहानी तो सुनाई, गरुड़ जी की तो सुनाई नहीं। गरुड़ जी क्यों आए उनके पास? जब रामायण में एक बार नागपाश का वार हुआ, नागपाश भगवान के ऊपर चलाई। नागपाश यानी कि नागों से भगवान को बांध दिया। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो ये मेरे को याद नहीं किसने चलाई, पर नागपाश चलाई, शायद रावण ने चलाई। तो जब भगवान को नागों से बांध दिया गया, तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों नागपाश से बंध गए। और हनुमान जी उनको ऊपर लेके आए, एक हमारी
रामानंद सागर जी की रामायण में बड़ा अच्छा सा सीन चलता है कि सब परेशान है कि अब ये नागपाश में बंध गए, क्या होगा। और नागपाश में बंधने के बाद धीरे धीरे शरीर नीला पड़ने लगता है और जैसे जैसे नागों का जहर फैलता है तो आदमी मर जाता है। तो नारद मुनि ने गरुड़ भगवान से बोला कि आप जाइए, आपके भगवान को आपकी जरूरत है, सेवा चाहते हैं, आप जाइए और उनके नागपाश खोल के देता हूँ। गरुड़ और सर्प एक दूसरे के एनिमीज हैं। तो जब किसी को काल सर्प दोष का उपाय करना होता है, एक उपाय उसमें से ये भी है कि आप गरुड़ जी की पूजा कीजिए। तो खैर, विदाउट डाइग्रेसिंग, तो नारद मुनि ने गरुड़ जी को प्रेरणा दी कि आप जाइए, भगवान के पाश खोल के आइए, उनके बंधन खोल के आइए, नागों से वो बंधे हुए हैं। तो गरुड़ भगवान ने जाके भगवान जी के पाश खोले, तो राम जी और लक्ष्मण जी को ठीक किया। और खोलते उनके मन में संशय आ गया कि ये जो सारे भवसागर से सबको पार करते हैं, इन सारे बंधनों से जो मुक्त करते हैं, उन वो बंधन में और उनके बंधन मैंने मुक्त कराए। ईगो भी आ गया और डाउट भी आ गया कि भगवान है क्या, ये भगवान है क्या, पक्का से भगवान ही है क्या। तो ये सोचते सोचते दुविधा में नारद मुनि के पास वापस गए, बोले कि ये तो मैंने उनके पास तो खोल दिए, पर क्या वो सच में भगवान है? दुनिया को वो बंधनों से मुक्त करते भगवान है क्या? मैंने उनको बंधन से मुक्त किया, खुद नहीं कर सकते थे अपने आप को? तो नारद जी बोला, रही ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ये तो दिक्कत हो गई, आप भगवान की माया से पीड़ित हो गए। इसका सोल्यूशन मैं नहीं बता सकता आपको, ये तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आप ऐसा करिए, मेरे पिताजी के पास जाइए, ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो गरुड़ जी अपनी शंका लेके ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को सारी चीज बताई कि ऐसा भगवान के पास मैंने काटे। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले मैं भी इस माया में कई बार इस माया से निकलना है तो आप ऐसा करिए, भगवान शंकर के पास जाइए, वो भगवान के बड़े भक्त हैं, वो आपकी शंका का समाधान करेंगे। तो भगवान शंकर भवानी के साथ जा रहे थे, कहीं रास्ते में ही मिल गए, वो कैलाश की तरफ उड़ने लगे तो रास्ते में ही भगवान मिल गए। तो भगवान से गरुड़ महाराज ने बताया कि भगवान तो सबके ये काटते हैं, बंधन काटते हैं, मैंने उनके बंधन काटे, तो क्या वो सच में भगवान है? तो शंकर भगवान भी हंसने लगे, बोले कि ये तो आपको बड़ी बीमारी हो गई है प्रभु, तो ना दिस इज अ बिग प्रॉब्लम ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसका समाधान बहुत जरूरी है। तो अब मैं तो रास्ते में हूँ, आपका समाधान का एक ही तरीका है कि आप देर समय तक सत्संग कीजिए, लंबे समय तक सत्संग कीजिए, तो ये आपकी शंका जो है ये दूर हो जाएगी। तो बोले भगवान, तो फिर आप सत्संग शुरू कीजिए, मैं बैठता हूँ। ये तो रास्ता है, यहाँ पर कितनी देर तक हम सत्संग कर सकेंगे, आपको थोड़ी ज्यादा, योर नीड इज अ लिटिल बिट मोर, you go somewhere where you can do it extensively for a long period of time. तो बोले अच्छा, तो फिर कहाँ जाना है? तो उन्होंने बताया कि आप काकभूषणी जी के पास जाइए, वहां तो 7 कल्पों से सत्संग ही हो रहा है, भगवान का सत्संग ही चल रहा है। इतने कल्प हो गए, कल्प युग कितने बीत गए, सत्संग ही चल रहा है, सुबह उठते सत्संग करते हैं, रात को तभी सोते हैं जब सत्संग खत्म होता है, सत्संग ही चल रहा है इतने। तो आप वहां जाइए, वहां जाके सत्संग कीजिए। तो गरुड़ भगवान उड़े उस जगह के लिए जहां पर काकभूषणी जी थे। तो
दूर से उन्होंने देखा उस आश्रम को जहां पर काकभूषुंडी जी सत्संग करते थे, राम कथा करते थे। और दूर से सिर्फ उसके दर्शन मात्र से, उनके आश्रम के दर्शन मात्र, जहां पर 7 कल्पों से राम कथा चल रही हो, उस आश्रम के दर्शन मात्र से उनकी संशय खत्म हो गई, उनका डाउट खत्म हो गया। पर जहां पर दर्शन मात्र से डाउट खत्म हो गया, फिर तो जाना बनता है, तो फिर वो आगे गए। आगे गए तो काकभूषुंडी जी मंगलाचरण कर रहे थे, सुबह का टाइम था, सही वक्त था, भगवान की पूजा कर रहे थे। पर गरुड़ महाराज आए, भगवान की पूजा कर रहे थे, मगर राजा आए पक्षियों के, तो उन्होंने पूजा छोड़ी, विराम लगाया और पहले गए राजा का सत्कार करने के लिए। अगेन बैक टू हाउ शुड वी कंडक्ट आवरसेल्व्स। पूजा पे विराम लगाया और पहले महाराज का ध्यान रखे। आए, सत्कार किया, बिठाया, आसन दिया, सबसे बड़ा आसन दिया। और इस पूरी कहानी में जो मेन टेक अवे, तो अगर आप सत्संग कर रहे हो, राम कथा सुन रहे हो, तो राजा भी सामने बैठेगा और कौवा भी व्यासपीठ पे बैठेगा, ऊपर बैठ के सत्संग कराएगा। तो भक्त ऐसा किसी भी रूप में, कुरूपी हो, कर्कशी हो, जो भगवान का नाम ले रहा है, जो राम जी का रस पी रहा है, राम कथा जो सुन रहा है, वो कुरूप भी इतना योगी बन जाता है, और वो कर्कश वाणी वाला कौवा भी मधुर वाणी से वचन करने लगता है। ये राम कथा का असर। क्यों बता रही थी मैं ये कहानी, तो भूल गई। So we know how to conduct ourselves. So we know how to conduct ourselves. कि जो 7 कल्प से भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके सामने भी पक्षी राज आए तो रुक गए, नाम लेते लेते रुक गए, मंगलाचरण करते करते रुक गए। पहले राजा को स्थान, पहले राजा का सत्कार। तो कैसे आचरण करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब ये चला, आता चाहे नहीं आता है, देख के सीख लो, कोई बड़े होंगे उनसे देख के सीख लो, कैसे करते हैं उनसे देख के सीख लो। कभी पानी पीते देखा है मुझे? कभी क्लास में अगर मैं भगवान की क्लास कर रही हूँ, कोई ना मुंह में पानी जाएगा, ना मुंह में खाना जाएगा। क्योंकि या तो ये चल सकता है या ये चल सकता है, या तो पेट चलेगा या दिमाग चलेगा। ये दिमाग चलाने का टाइम है, पेट क्यों चला रहे? पानी भी आधा घंटा लेता है डाइजेस्ट करने में अपने आप को। It takes half an hour for water to digest. This is a fact of yoga. You cannot do yoga before, after consuming water for half an hour. वो मूर्ख लोग, ये विदेश में ही हैं जो पानी की बोतल लेके चलते हैं, अपनी योगा करने जा रहे हैं, पानी की बोतल लेके जा रहे हैं, गधे। पानी पीने के बाद योगा नहीं होता, योगा के बाद आधा घंटा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी टेक्स half an hour to digest even water. So आचरण, और फिर सोच, उसमें भी सोच हमारी ये कि हम
किसके साथ छल करते? अपने साथ छल करते, बोलते हम बहुत अच्छे। अब बताओ, छोटे बच्चे हो जिसके, पढ़ाई के समय में खाना देना चाहिए, दूध देना चाहिए, बॉर्नविटा देना चाहिए। पहले दिमाग का काम खत्म कर लो, उसके बाद पेट का काम शुरू करो। पर नॉर्म क्या है? बच्चे आए स्कूल से, पहले खाना ठूसो, अब उनको बोलो होमवर्क करो, ठेंगा होमवर्क होएगा? पेट चल रहा है, दिमाग तो चल ही नहीं रहा। तो आचरण, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ कि आप अच्छा काम कर रहे हो। अपने आप से हम छल करते हैं, अपने आप से हम झूठ बोलते हैं। सो भगवान ने बोला, निर्मल जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल है वो तो मुझे पाया हुआ है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट, छल और छिद्र बिल्कुल पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता, वहां पर मैं नहीं रहता। और हम लोग, ऐसा नहीं है, ये छल दूसरे के लिए नहीं है कि मैंने दूसरे को झूठ बोला, दूसरे के साथ कुछ गलत किए, तो खुद के लिए है। खुद को तो झूठ मत बोलो, खुद के साथ तो गलत मत करो, खुद का आचरण तो ठीक करो। खुद अपने आप को तो ये मत समझाओ कि तुम ठीक हो। ठीक तो एक सांस हो जाए तो निर्वाण हो जाए। हमारे में 3 नाड़ियां है ना, अगर हम ठीक हैं तो वो एक जगह पर एक साथ तीनों का आवाहन हो तो तुरंत समाधि लग जाए। एक क्षण भी अगर हम ठीक हो तो हमें समाधि मिल जाएगी। भगवान तो यही है, निर्मल मन। वो निर्मल मन अगर हमारा हो तो तुरंत ही समाधि लग जाएगी, तुरंत ही भगवान मिल जाएंगे, है ही। पर हम किससे झूठ बोलते हैं? अपने आप से झूठ बोलते हैं। किससे छल करते हैं? अपने आप से छल करते हैं। किससे छिद्र करते हैं? अपने आप को ही बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। यही समझते हैं हमसे अच्छा कोई नहीं, और यही समझते हैं कि हम जो कर रहे हैं सब ठीक। Does that make sense? खैर हम तो रिवीजन कर रहे थे। और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनी बिग टेकअवेज फॉर एनीबॉडी एल्स? खुशबू, कुछ याद पिछली क्लास से? दीदी, नमस्ते। अपार्ट फ्रॉम व्हाट तानिया मेंशन्ड, मेरे लिए वो स्टोरी जो आपने सुनाई थी कि पार्वती सती माता अपने आप को सती करने से पहले अग्नि में वो राम जी की पूजा करती हैं और राम जी से विनती करती है कि मुझे हर जन्म में शिव जी ही पति के रूप में मिले। And this is a very cute story where Sati Mata prayed to Ram ji to get Shiv ji, and then Parvati Mata did, then Sita Mata did Parvati Ma ka puja to get Ram ji. So that stayed with me a lot. ये तो तुम पिछली बार भी बोली थी। It must have stayed with you a lot. नहीं, ये तो पिछली क्लास का ही है दीदी। अच्छा, ये पिछली क्लास भी हम रिवीजन ही कर रहे थे। रिवीजन ही करते रह जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते ही नहीं। क्या करें, भगवान की मर्जी। पात्रता लानी पड़ेगी, थोड़ी पात्रता लानी पड़ेगी तो फिर आगे बढ़ेंगे। उसमें भी जब माता सीता माता भगवान की पूजा कर रही हैं, अ, भगवती की पूजा कर रही थी, देवी की पूजा कर रही थी, तो उनकी सखी ने आके बोला कि राम जी आए हैं। पूजा छोड़ी वहां पर, पहले राम जी का सत्कार किया, फिर वापस आके अपनी पूजा खत्म करी।
तो आचरण जो है ना, बहुत ध्यान से देख के सोच के करने वाली चीज। हम बिना सोचे खाते, बिना सोचे चलते, बिना सोचे उठते बैठते। I include myself in this, so please don't take anything personal. इसमें सबसे बड़ा कल्प्रिट मैं खुद ही हूँ, मुझे भी नहीं आता, और सीखना हम सबको है। Any other takeaways? Hina, any thoughts, beta? No thoughts. Piyush, any thoughts, Rajay? दीदी मैं लास्ट क्लास में एब्सेंट था, बट वीडियो मैंने देखा तो आई थिंक जो मुझे याद पड़ रहा है उस एक एक पर्टिकुलर चीज जो उस क्लास की थी कि आपने जैसे समझाया कि सुर और असुर में क्या फर्क होता है, एंड इट्स वेरी सिंपल। जो सधा हुआ नाव वो असुर है। हम हमेशा असुर को रिलेट करते हैं कि समथिंग वेरी डेमिनिश, समथिंग विद बैड वर्च्यूज, बट जो सही नहीं है, दैट एवरीथिंग इज असुर। तो जो सधी हुई चीज है वो सुर है, और सधा हुआ होना बड़ा मुश्किल है। और आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था जब पुलकित ने बोला कि स सा स ये सारे सुर हैं, पुलकित सेड यस। बट आपने कहा कि नहीं, सारे सुर नहीं है, वही स जो सधा हुआ स है वही सुर है, बाकी सारे असुर हैं, लगते जरूर सुर जैसे हैं। और गुरु जो है वही साध सकता है। आई थिंक दैट्स समथिंग जो मैंने वीडियो देखा उससे दैट स्टेड विद मी। सो असुर इज अ वेरी वाइड डेफिनेशन, एवरीथिंग इज असुर, वहां से निकलना बहुत जरूरी है। इसमें जो ये बार बार सब खोलते हैं ना, गुरु जरूरी है, गुरु जरूरी है, गुरु जरूरी। इट्स क्वाइट इरिटेटिंग एंड आल्सो फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। गुरु जरूरी है, गुरु जरूरी है, तो सबको तो गुरु मिला हुआ है, अपना गुरु कहाँ है? तो it's an interesting internal conversation that constantly goes on. गुरु जरूर, पर गुरु क्यों जरूरी है? गुरु इसलिए जरूरी है क्योंकि आप उसके सामने छोटे हो जाते हो, बस इसलिए। क्योंकि you have at least the opportunity to, whether you do or not, to look up। वरना तो हम ऊपर देखते ही नहीं है, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो जब आदमी ऊपर देखने लगता है, तो ये जो मैं आत्मबोध, आत्मग्लानि की बात कर रही हूँ, ये अंदर डेवलप हो जाती है। और ये निर्मलता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, भगवान तो अपने अंदर है ही, अपना दर्शन दे देंगे। जैसे जैसे ये ऊपर ही देखता रहे आदमी, नीचे ना देखे, खुद को ऊपर ना समझे, तो अपने आप ही भगवान दर्शन दे देंगे, कोई इसमें 2 मिनट भी नहीं लगेगा। और गुरु हर कोने से आपको ऊपर दिखाता है, हर एरिया में। चलो तुम सोचते हो तुम यहाँ ठीक हो, यहाँ भी ऊपर देखो, यहाँ ठीक हो, यहाँ भी ऊपर देखो, यहाँ ठीक हो, यहाँ भी ऊपर देखो। आता ही नहीं तुम्हें कुछ, तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं आता, तुम गधे हो। जब गुरु ये बार-बार बोलता है, तो आदमी ऊपर देखता है, ऊपर देखता है तो मन निर्मल हो जाता है। कभी डरा के, कभी धमका के, कभी समझा के, कभी प्यार से। मोनिका, एनी थॉट्स? Didi, I'm sorry I didn't revise the last week's class at all. I'm really sorry.
No worries. Shalini, any thoughts? Are you on the road? You must be on the road. Namaste, Didi. Actually, I'm outside somewhere, Okay, no worries. but no, but I can still say I've just come out. तो बेसिकली मेरे लिए भी यही आपने जो बार बार रिट्रेट किया था कि ये असुर अधम अभिमानी तो हम ही हैं, तो बाहर नहीं है, और भगवान हमारी आत्मा को ही बचाने आएंगे। कोई ये नहीं है कि किसी हमें बचाने आ रहे हैं और बाहर के लोग सारे अधम अभिमानी असुर हैं। So basically it was that only that तो जैसे आपने इस बार आज सब कुछ उसी से कनेक्टेड है, एंड आई थिंक इफ द फास्टर भी, अगर हम रियलाइज ही नहीं करेंगे कि गड़बड़ है तो हम वर्क ही नहीं कर सकते हैं। और मैंने भजन भी किया था, आपने बोला था तो भजन भी किया था। कम तो नहीं हुआ? हाँ, पूरा हो गया कि कम हुआ? नहीं पूरा, पता नहीं, जितना कर सके उतना किया। वेरी गुड। अगर भजन कितना कर सकते हैं का कोई अनुमान लगाना हो तो काकभूषुंडी जी की कहानी याद रखनी चाहिए। भजन इतना होना चाहिए, 7 कल्प तक भजन होना चाहिए, लगातार भजन ही भजन। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गोस्वामी तुलसीदास जी शुरू करते हैं भगवान की कथा। कहाँ से शुरू करते हैं? विमल कथा कर कीन्ह आरंभा सुनत ना सही काम मतदंभा। विमल कथा कर कीन्ह आरंभा सुनत ना सही काम मद दंभा। अब विमल मतलब सुंदर, तो विमल का मतलब जिसमें मल ना हो, बिना मल के, जिसमें कोई किसी तरह का छल ना हो, छिद्र ना हो, कपट ना हो, मल ना हो, वो विमल। तो ये पूरी कथा ही विमल है। जो मैं निर्मल की बात कर रही थी, बिना मल के, ये पूरी कथा भी विमल है। इन्होंने निर्मल की जगह विमल का यूसेज है। विमल कथा, बिना मल की कथा है। कर कीन्ह आरंभा सुनत ना सही। जो सुनता है, सुनने से ही नाश हो जाता है। किस चीज का नाश हो जाता है? हमारे 6 दुश्मन जो है अरिषड वर्ग, क्या है? क्या है तान्या?
वासना। वासना नहीं बेटा, अरिषड वर्ग है 6, वासना तो 4 है। 6 शत्रु हैं हमारे, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर्य। काम लिख लीजिए, काम, क्रोध, लोभ, मद, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर्य। बड़ा क्यूट सीक्वेंस है इनका, सीक्वेंस भी जानने लायक है। काम, काम क्या है? काम मतलब desire, वेरी नाइस। काम, कामना, कामना से काम, काम मतलब डिजायर। डिजायर इज इनहेरेंट इन एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग। कोई भी डिजायर हो तो दो ही आउटकम हो सकते हैं। वो डायग्राम होता है ना, फ्लो डायग्राम, बचपन में सीखा था ना फ्लो डायग्राम। तो अगर डिजायर आ जाए किसी चीज के लिए तो दो आउटकम हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? फ्लो बनाओ, या तो पूरी हो जाएगी या फिर नहीं होगी। अगर पूरी हो जाएगी तो आगे चलेंगे हम, कहाँ पहुंचेंगे? मोह में, मोह में अटैच्ड हो जाएंगे। लोभ में। हाँ, लोभ, हाँ, लोभ में, लोभ में, हाँ। आपको अगर 50 लाख रुपए में मिल रहा है साल का, पूरी हो गई। आप पहले 5 भी नहीं मिल रहा था, है ना? क्यों नेहा? है ना, पहले 5 भी नहीं मिल रहा था, 50 मिल रहा है। रुक गए क्या वहां पे? अभी क्या लगता है? 50 मिल रहा है तो एक क्यों नहीं मिल रहा? जब कामना पूरी होती है, अच्छी बात नहीं है कामना का पूरा होना। जब डिजायर पूरी होती है तो क्या बढ़ता है? ग्रीड बढ़ती है, लोभ बढ़ता है। और जब डिजायर पूरी नहीं होती तो क्या बढ़ता है? क्रोध, वेरी नाइस। फिर चाहे पूरी हो चाहे ना हो, चाहे लोभ तक पहुंचे चाहे क्रोध तक पहुंचे, मोह तो हो ही जाता है। मोह से आगे बढ़ते हैं तो मद तक पहुंचते हैं। मद क्या? मद का मतलब नशा, एक ही चीज। नशा क्या? वो चीज नहीं नशा, जैसे अल्कोहल या ये ना, इसको नशा नहीं बोलते। more नशा like क्या? an addiction, like अहंकार दीदी। अहंकार नहीं mm, बेटा। It takes over you, like you. It takes. possession. Yeah, that's a टेक्स better way. ओवर यू मतलब का मतलब क्या? मोह तो चलो ठीक है, मोह तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मद हो जाता है। मद का मतलब ये है कि आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। इट टेक्स ओवर यू का मतलब भी क्या? कांट Obsession. ऑब्सेशन। योर माइंड इज कंज्यूम्ड बाय दैट वन थॉट ओनली। देयर इज ओनली वन agenda
in your head again and again and again and again. Imagine इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए और आप एक ही चीज बार बार दोहरा रहे हैं अपने दिमाग में. यहाँ पर आपकी जर्नी रुक जाती है, मेंटल कैपेसिटी ओवरलोड हो जाती है. इमेजिन अ कंप्यूटर being stuck on one command and going round and round in circle. You've seen that circle coming, no, on your screen. Very frustrating. That is mud. It is continuously stuck on one thing. And Matsarya? Matsarya का मतलब? jealousy दी. है जी? Jealousy. Very good. ईर्ष्या. चलो मद भी ठीक था, मद की कोई दिक्कत नहीं थी. अब ये मात्सर्य तो बहुत ही गंदी चीज है. मद भी कम से कम आप अंदर ही, अपने अंदर ही अटके हुए थे. मात्सर्य तो आप दूसरे के अंदर अटक गए. You're not stuck about what you want. You're stuck about what the other person has. तो कंडक्ट कैसा रहना चाहिए? भगवान बताते हैं अपनी पूरी कथा में कि अच्छा मिले तो भरत जैसा कंडक्ट, राज मिला उसको अयोध्या जैसा राजा. मेरा तो है ही नहीं, ये तो भगवान का है, ये तो राम जी का है. सर पे पादुका रख के चले, ये तो उनका राज्य है, उन्हीं का सिंहासन है, उन्हीं का सब कुछ है, वही. और काम कैसा? काम भी भरत जैसा कि हनुमान जी भी रात को, बीच रात में पर्वत लेके संजीवनी ऊपर से उड़ रहे थे, तो भरत जी ने अयोध्या के ऊपर से उड़े उड़े तो उनको मूर्छित कर दिया बाण से. गिर गए हनुमान जी पूरे पर्वत के साथ. कि अयोध्या पे काम किसका है? राम जी का. राज्य किसका? राम जी का. और चौकसी किसकी है? भरत जी की. काम ऐसे अच्छा काम मिले, बड़ा काम मिले, ईगो नहीं बढ़ाना, किसी और का काम है. एक और आम सवाल आता है, हमें नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए? एक बड़ा, एक एस्ट्रोलॉजर के पास कोई अगर एस्ट्रोलॉजी की दुकान खोले तो एक दिन में 50 बार क्वेश्चन आएगा, नौकरी करनी चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस करो और बिजनेस भी नौकरी की तरह से करो. क्यों धन्य? अगर अगर अपने राज्य चलाना है तो भरत जी जैसे राजा बन के रहो. राम जी का नाम खराब होएगा, इसलिए भरत सोते भी नहीं थे कि ये राम राज्य चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए. कि दूर चलते हुए हनुमान जी ऊपर से उड़ रहे थे, वहां पर भी उन्होंने बाण मार दिया. क्योंकि किसका काम है? राम जी का काम है. किसका राज्य है? राम जी का. नाम खराब नहीं होना चाहिए. राम राजा है. राम राज्य जिसकी हम बात करते हैं वो कौन चलाता था? वो भरत चलाते थे राम राज्य. जब भगवान सिंहासन पे बैठे थे तब,
और जब भगवान की सिर्फ पादुका बैठी थी तब से राम राज्य चल रहा था। इजी है ना क्वेश्चन आंसर करना। बिल्कुल बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग बिजनेस नहीं करते वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता उनके अंदर कोई गुण ही नहीं है। राम राज्य बनने की कोई कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आदमी डरता है तब अपना काम नहीं करता है क्योंकि उसको पता है उसके अंदर गुण नहीं है पूरा काम करने। अगर आदमी डरता नहीं है तो अपना ही काम करता है, पर भारत की तरह से करता है, राम राज्य की स्थापना करके। तो कहने का मतलब ये है कि दो चीजें होनी चाहिए। एक तो जब आपके पास कुछ अच्छा हो, जैसे राम राज्य मिले, तो कंडक्ट कैसा होना चाहिए। और जब कुछ खराब हो, जैसे कि राम जी की राज्याभिषेक पे उनको वनवास मिल गया, तो कंडक्ट कैसा होना चाहिए। या काकभूषुंडी जी को कौवा बना दिया गुरु ने, कंडक्ट कैसा होना चाहिए। ऐसे उछलते उछलते, वाह, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो जब काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये जो षड अरिषड वर्ग है, ये अपनी 6 हमारे शत्रु हैं, जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये कंडक्ट आएगा। इनके नाश का ये निशान है, ये निशानी है कि ये नाश हो गए। क्या निशानी है कि जब अच्छा समय आएगा, जब राम का राज्य मिलेगा आपको, किसी को जवाबदारी की जरूरत नहीं है, राजा है आप, तब भी आप सर नीचे करके और सेवक की तरह से काम करेंगे। और जब आपका राज्य छीन लिया जाए तो भी आप सर नीचे करके सेवक की तरह से काम करेंगे। तो जिसका मन निर्मल है उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, इधर वे, दिस वे और दैट वे। जिसका नहीं है उसको फर्क पड़े, जिसका ईगो है उसका ईगो बन भी सकता है, बिगड़ भी सकता है कि नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, विमल कथा कर कीन्हा आरंभा। विमल बिना मल की कथा है, इससे सबसे बड़ा जो काम होगा वो आपके मल का नाश हो जाएगा। मल कौन, ये 6 अरिषड वर्ग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब खत्म हो जाएंगे। और कैसे खत्म हो जाएंगे, नाश ही, कैसे नाश हो जाएगा इनका। ये नाश का एग्जाम्पल दिया जाता है, कई लोग देते हैं कथा में। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि नाश कैसे होता है। कोई चीज बड़ी ऑब्वियस है, इतनी बड़ी पहाड़ की तरह से ऑब्वियस सी खड़ी हुई है और एकदम से नाश हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ के ऊपर डायनामाइट लगा के उसके छितड़े छितड़े उड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये नाश भी बड़ा सुंदर है। इसका एग्जाम्पल जो दिया जाता है वो बहुत सुंदर। ये नहीं किसी को तीर मार दिया, किसी की तलवार से गर्दन काट दी, इट्स नॉट वायलेंट एट ऑल। ये राम कथा है। इसमें नाश कैसा होता है, नाश होता है ओलों की तरह से।
जैसे कहीं ओले गिरे, जब ओले गिरते हैं, बहुत सारे ओले गिरे तो एकदम सारी पृथ्वी व्हाइट हो जाती है और उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो तो वापस व्हाइट से खत्म हो जाती है। ये नाश, ऐसा नाश होगा। देखते देखते जैसे ओले डिसअपियर हो जाते हैं, वैसे राम कथा सुनते सुनते आपके सारे ये 6 अरिषड वर्ग खत्म हो जाएंगे। इसमें कहीं विध्वंसक कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि डायनामाइट फटेगा या सर कटेगा या किसी को पेट में चाकू घोंस दो। नो, द होल मैट्रिक्स डज नॉट अप्लाई। नन ऑफ दैट। इट विल जस्ट स्लोली dissipate and disappear, completely finish, as if it never existed. विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनत नासहि काम मद दंभ। ये सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे एकदम ऑब्वियस गिरे हुए सफेद ओले आंख से ओझल हो जाते हैं, वैसे ये खत्म हो जाएंगे। कितनी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। आई कुड नॉट गेट ओवर दिस एग्जाम्पल बिकॉज इट वाज सो ब्यूटीफुल। कि नाश भी हो रहा है। कैसे नाश हो रहा है? देखते 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 अभी था, अभी नहीं है। रामचरितमानस एहि नामा। नाम क्या रखा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने नाम रखा रामचरित मानस। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। सुनत श्रवण पाए विश्रामा। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे कि कैसे विश्राम मिलता है। बट विमल कथा कर कीन्हारंभा, सुनत नासहि काम मद दंभा। समझ में आया सबको? और मैंने पिछली काफी क्लासेस में रामचरित मानस क्यों लिखा भगवान तुलसीदास जी ने, किस लिए रामचरित मानस नाम दिया गया, मैंने कुछ चर्चा की थी। अगर आप रिवाइज करें तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं करें तो कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी बताऊंगी। ठीक? एनी क्वेश्चंस फ्रॉम व्हाट वी डिस्कस्ड टुडे? हाँ जी बेटा। Didi, this what we did now, it collides with what we are doing with Gita. What I'm thinking of कि be fearless and जो भी काम आ रहा है और जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के लिए करो, भगवान का अर्पण करके करो, तो शायद धीरे 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 ये चला ही जाएगा। ये हमारे 6 शत्रु चले जाएंगे, प्लस रामचरितमानस की कथा करते 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 करते। इज इट करेक्ट? इज इट ऑन द राइट टेंजेंट? जो हम गीता में कर रहे हैं और जो अभी हमने सीखा वो सेम ही है। बेटा बात तो सब सेम ही है, मगर बोलने के तरीके अलग अलग हैं। बात तो सेम ही है। गीता को आचरण में उतारना पड़ता है, रामचरित को भी आचरण में उतारना पड़ता है। और गीता के बाद हुआ समर, गीता के बाद युद्ध हुआ। और यहाँ हमने डिस्क्रिप्शन देखा कि कैसे कैसे नाश हो रहा है इन शत्रुओं का। गीता बहुत ही विध्वंसक नाश है। इट्स अ वेरी वायलेंट डिसेपिटेशन ऑफ योर वीकनेसेस and your fears. And Ramcharitmanas is a very simple surrender, dissipation of your weaknesses, but in without any violence. ना लड़ाई तो यहाँ भी भगवान ने की, मगर ये जो रस जो है, जिसकी वजह से, ये कथा की वजह से आपको
जो सीखने मिलेगा उससे भी आपके सारे दोष खत्म होंगे बिना वायलेंस के। गीता के ऊपर तो चलना पड़ता है। कथा सुनते 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 आदमी ऐसे चेंज हो जाता है। बार 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 भरत का नाम लेंगे तो भरत जैसे बन जाएंगे। मेरे हिसाब से तो केवट की भी पूजा ही कर लेनी चाहिए। भगवान बोलते हैं कि एक कहानी थी काकभूषुंडी जी की, मैंने शायद सुनाई भी थी, तुम लोगों को याद तो होगी नहीं। तो एक बार काकभूषुंडी जी बैठ के भगवान का बाल स्वरूप देखते थे, तो 5 साल वहीं रहते थे अयोध्या में, जब बाल लीला करते थे राम जी। तो एक दिन ऐसे ही देख रहे थे भगवान को, तो भगवान ने कुछ ऐसे खिलाया कि आजा आजा। और जैसे ही वो पास जाए कि भगवान बुला रहे प्रसाद क्यों ना ले, तो आजा आजा कर रहे थे भगवान, तो काकभूषुंडी जी पास गए तो रोने लगे भगवान। तो ऐसे 5-6 बार हो गया कि तो काकभूषुंडी जी के भी मन में संशय आ गया थोड़ा सा कि ये भगवान ही है कि प्रसाद भी नहीं दे रहे हैं, पूरा भगवान ही है। उनके मन में भी संशय आ गया। तो संशय दूर करने के लिए भगवान ने हाथ आगे किया उनको पकड़ने के लिए, तो वो भागे। तो पूरे यूनिवर्स का चक्कर लग गया 4 बार, और हाथ पीछे पीछे, और काकभूषुंडी जी आगे आगे। फिर पकड़ में नहीं आए, पर वो वापस आए वहीं पर बागीचे में, और भगवान का मुंह खुला हुआ था, उसमें अंदर चले गए। और अंदर चले गए मुंह में, तो सारे कितने कितने कल्प अंदर ही बीत गए। अयोध्या में जाके 50 बार राम जी के दर्शन कर लिए उन्होंने अंदर ही। और जब बाहर निकले तो 2 सेकंड का टाइम निकला होगा कि वो मुंह से बाहर निकल गए। बाहर निकले तो प्रणाम किया। भगवान ने बोला क्या चाहिए। काकभूषुंडी जी बोले मेरे को क्या चाहिए कुछ। आपको जो ठीक लगे आप दे दो। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हें ज्ञान, वैराग्य, सिद्धि, निधि सब रहेगी। तो जब भगवान ऐसा बोले तो काकभूषुंडी जी उदास हो गए। भगवान ने उनको उदास देखा, बोला कि आप उदास क्यों हैं? उदास किस लिए, मैंने तो आपको इतना सारा दिया। छोटे से इमेजिन, छोटे से राम जी, 5 साल की कम अवस्था होगी। उदास क्यों है काकभूषुंडी जी? तो काकभूषुंडी जी रोते हुए बोले भगवान सब दिया आपने, इसका क्या करूंगा अगर आपने अपना नाम नहीं दिया, भक्ति नहीं दी। मेरे को सिर्फ भक्ति चाहिए। तो भगवान का रूल है एक, नारायण का रूल है। उनका रूल ये है कि अगर भक्ति चाहिए, भगवान की भक्ति चाहिए, तो पहले शंकर भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। अब आप काकभूषुंडी जी की कहानी पे ध्यान दीजिए। पहले किसकी पूजा की उन्होंने? शंकर भगवान की पूजा की। उसके बाद वो भक्त बने राम जी के। तो उस समय उन्होंने काकभूषुंडी जी को भक्ति भी प्रदान की, बिना ये बोले शंकर जी की पूजा कीजिए। ऐसे ही अपना रूल जो है, ये भगवान का रूल है कि शंकर जी की तपस्या करेंगे उसके बाद ही भगवान की भक्ति मिलेगी। क्योंकि आप जैसे जिस रूप की पूजा करेंगे वो रूप वैसे ही हो जाएंगे। भगवान क्या करते हैं, शंकर भगवान क्या करते हैं,
वो राम जी की पूजा करेंगे। राम जी की भक्ति करनी है तो शंकर जी की पूजा करनी पड़ेगी, वरना आपको राम जी की भक्ति कैसे आएगी? शंकर भगवान की पूजा करनी है तो पहले किसकी पूजा करनी पड़ेगी? ललिता माँ। देवी। देवी की पूजा करनी पड़ेगी, तब शंकर भगवान की भक्ति आएगी। तो ये भक्ति भी सीखनी आसान काम नहीं है, धीरे धीरे शुरू करना पड़ता है, और लंबी कहानी है, लंबी जर्नी है। तो वी आर स्किपिंग अ फ्यू स्टेप्स, बट देयर वर अ फ्यू पीपल हु स्किप्ड दोस स्टेप्स। जटायु, सीधे भगवान की भक्ति मिली उनको। शबरी, सीधे भगवान की भक्ति मिली उनको। काकभूषुंडी जी, सीधे भगवान की भक्ति मिली उनको। केवट महाराज, सीधे भगवान की भक्ति मिली उनको। तो भगवान अपने रूल चेंज कर देते हैं कभी कभी, कभी कभी, और उसमें भी चेंज ज्यादा नहीं होता, जन्म का हेर फेर होता है। पिछले जन्म में कुछ की होगी जो भगवान ने अब आपको बिना उस कंडीशन के दे दी। ये जो मात्सर्य है ना, ये सारे में यूज होता है, हर जगह पे लगता है। कभी कभी गुरु के साथ भी लगता है, भगवान के साथ भी लगता है। तो हम सोचते हैं भगवान ने ऐसे इसको इतनी आसानी से दे दिया, मुझे तो दिया नहीं, या गुरु ने इससे तो इतने प्यार से बात करी, मुझे तो की नहीं, मुझे तो डांट ही पड़ रही है अभी। अब ये पिछले जन्म का कुछ होगा, आगे पीछे का। जो मिल रहा है प्रसाद की तरह से ग्रहण कर, क्योंकि आगे ही जाओगे, पीछे नहीं जाओगे। अब मैं कहानी क्यों सुना रही थी, मैं तो बिल्कुल भूल गई। तेरा क्वेश्चन था खुशबू, क्या ये एक जैसी चीज है? ये एक जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, एंड एक हो सकता है, मगर मीन्स बिल्कुल डिफरेंट है। भगवत गीता में जाग के रहना पड़ेगा, सोते सोते भी रामचरितमानस सुन लो तो बात बन जाएगी। हालांकि दोनों ही चीजें जगा देती हैं आपको, बट तरीका अलग अलग है। एक के बाद समर है, और ये ओले की तरह से आपको पिघाल देगी, आपके जो दोष हैं उनको पिघला देगी। विमल कथा कर कीन रंभा, सुनत ना सही काम मत दंभा। जैसे ही सुनेंगे तो काम मत और दंभा का नाश हो जाएगा। कैसे नाश होगा? ये गीता वाला नाश नहीं है, ये दूसरी तरीके का नाश है। खेल खेल में भगवान ने काकभूषुंडी जी को ईगो का खत्म कर दिया, माया खत्म कर दी, खेलते खेलते, दर्शन देते देते, दर्शन देते देते। So that. Any other questions? Or कि राम जी ने फिर दी क्या उनको भक्ति? ये तो आपने बोला नहीं। हाँ बेटा, दी ना। अच्छा। I said exceptions. हाँ जो हाँ। आप कहानी में सुनते हैं कुछ एक्सेप्शंस हैं। हनुमान जी को दी भक्ति, जटायु को दी भक्ति, शबरी माता को दी भक्ति, काकभूषुंडी जी को भी दी भक्ति। एक्सेप्शंस है। हनुमान जी तो खुद ही शिव जी का अवतार है, उनको क्या बोलेंगे कि आप शिव जी की पूजा करो? Like that. There are reasons why they were exceptions, but there are exceptions. पर अगर यहाँ तक पहुंचना है ना, राम जी की भक्ति करनी है, तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? देवी की भक्ति। माता की भक्ति करनी पड़ेगी, तब कहीं पहुंचेंगे। तब शिव जी तक पहुंचेंगे, फिर शिव जी की भक्ति करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद राम जी पहुंचेंगे। थोड़ा दूर का रास्ता है, कोशिश करते हैं, देखें कितना पार होता है। ठीक, ऑलराइट गाइस।
Thank you very much. Have a nice week. I probably won't be able to see you next week because I might be traveling, but if I can, I will. And we'll continue with this chopai. Namaste. प्रणाम दीदी। Namaste, Didi. Thank you. Namaste, Didi. Thank you. Namaste.